So question number 6 from exercise 10.2, it says that a 99% confidence interval for population mean is reported to be 83 to 87. Okay, so 99% of confidence interval, it is reported to be population mean. So population mean means mu is in between 83 to 87, correct? If sigma is equals to 8, so sigma is also given, it is equals to 8, that is standard deviation. What is the sample size used in this study? So sample size means n. You have to determine the value of n. N is equals to question mark. So I think question is clear to all of you. So first of all, what is the formula which is used to determine this? So you know that how we determine mu. So mu is equals to x bar plus e. Here e is margin of error, and the other one lower bound will be found by x bar minus e. This is upper bound, and this is lower bound. So in this case, the value of mu is 87 when we take positive. So it is 87. X bar is given. X bar is given. Just check the question. I think x bar given नहीं है क्या? X bar given नहीं, ठीक है. So Sir, इसको please as explain once again when do we use these two formulas? the value of mu can be determined by x bar plus minus e. E is margin of error. We use this formula so many times. It is also given in page number Yeah, 586. sir. Yes, Okay. sir. So plus and minus, I have taken the two considerations. So x bar, we will take x bar as it is, plus e, margin of error. So e can be calculated by this way. The formula to calculate e is equals to, it is z alpha by 2, z alpha by 2 into sigma upon root n, correct? Into sigma upon root n. वो एक्चुअली उसकी भी आगे जाके यूज होता है. मतलब आगे जो कई चीजें ऐसी जो आप अभी नहीं पढ़ते हो, तो उसमें अल्फा जो है, जैसे टी टेस्ट अप्लाई करेंगे उस समय भी अल्फा का सिग्निफिकेंस होता है, इसलिए. ठीक है. So Z alpha by 2, here it is 99% confidence interval. So the value of Z alpha by 2 will be 2.576, correct? So this value is 2.576. The value of sigma is given to you. It is 8 divided by root n, correct? So this will be the margin of error E. Okay. Now we put the value of E in both the cases. So here it will be 2.56 into 8 divided by root n. Okay. Here in case of lower bound, so mu will be 83. The value of x bar is not given, so we will write as it is x bar minus e, margin of error will be same as the previous one, so it is 2.56 into 8 divided by root n. क्या ये स्टेप क्लियर है? हमने क्या किया, वैल्यूज पुट की है. Now we will consider this as equation number 1 and the other one as equation number 2. Okay. Now keep this thing in your mind that you have to determine n, value of n. So what we will do with equation 1 and 2? We have to subtract 1 from 2. We will subtract 1 from 2. So x bar will get eliminated and the complete expression will be in terms of n only. Okay. और अगर मान लो हमको x बार निकालना होता तो हम क्या करते, दोनों इक्वेशंस को ऐड करते. दोनों को ऐड करते तो ये वाली टर्म्स कट जाती और आपको किसकी वैल्यू मिल जाती, x बार की वैल्यू मिल जाती. क्या ये समझ में है? हाँ, सब्स्टिट्यूट भी कर सकते, चलेगा. एक्चुअली दोनों ऑप्शंस है, सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन. अभी एलिमिनेशन से क्या इजीली हो जाएगा, x बार कट जाएगा, इसलिए मैं कर रहा हूँ. ठीक है. सो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इक्वेशन 2 या इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2. ठीक है. शेवी कोई डाउट इसमें तो पूछ लो. No, sir. ओके.
सो लेफ्ट हैंड साइड ये हो जाएगा, राइट हैंड साइड में इट विल बी 2.56 इंटू 8 अपॉन रूट n प्लस 2.56 इंटू 8 अपॉन रूट n, ऐसा हो जाएगा। क्लियर? फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाला जो टर्म है, ये टर्म क्या हो जाएगा 4, यहाँ पर रूट n इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 रूट n। ओके, राइट हैंड साइड पे ये वाली जो दोनों टर्म्स है ये 2 टाइम्स 8 2.56 ये हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट तो पूछ लो। ओके, फर्दर रूट n इज इक्वल्स टू 8 टू जा ये कितना हो जाएगा 16 अपॉन 4 इंटू 2.56 को 256 अपॉन 100 लिख देता हूँ। ठीक है, 4 1 जा 4 4 जा 16, करेक्ट। सो रूट n इज इक्वल्स टू 4 इंटू 256 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ तक क्लियर? Now squaring both the side. So when we square both the side, it is equals to n 4 square into 256 square divided by 100 square. Correct? So n is equals to 4 square is 16. Divided by in denominator it will be 10,000. And what about 256 square? 256 का square कितना होता है? बहुत बड़ा नंबर होगा ना एक्चुअली वो, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। The square of 256, हाँ कैलकुलेशन इसके बड़े हैं इस वाले क्वेश्चंस के, into 16 it will be 1048576 divided by 10,000. Okay, so when you divide it with this you will get 104. Now what's the answer? N is equals to, कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे? 106 आ रहा है क्या? कुछ वैल्यू में गलती तो नहीं किया है? एक बार चेक करना पड़ेगा। किसमें? अच्छा मैंने वैल्यू गलत ली है, 2.576 है ना ये। ओके 576, सॉरी, इसीलिए गलती हुई होगी और कुछ नहीं। 576 डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा ना फिर ये, तो ये 1000 का स्क्वायर, बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है, मतलब प्रोसेस समझ गए ना, वैसे ही होगा प्रोसेस। एक बार मैं कैलकुलेशन इसको कर लेता हूँ, ठीक है, 576 के अकॉर्डिंग। सो ये हो जाएगा 4 रूट n इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 8 2.576 अपॉन 2.576। सो n इज इक्वल्स टू root n is equals to 4 2 8, so it is 4 2.576, squaring both the sides, so n is equals to 16 into 2.576 whole square। check कर लेते हैं, 2.576 square into 16, yes ये आ रहा है 106.17। so we will consider the nearest integral value, so n is equals to 106। that's it, this will be the final answer। clear? शेवी समझ में आ गया क्या? Yes, sir. ओके, सो ये पूरा हटा दूं मैं? हाँ ये किया ना, इसीलिए तो रूट n की वैल्यू ये थी, स्क्वायरिंग किया तो 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ होल स्क्वायर लगाया। हो गया, हटा दो। ओके, so let's move to the next topic, that is hypothesis testing। hypothesis testing थ्योरी है और टी टेस्ट के अंदर हाइपोथेसिस टेस्ट आता है। ठीक है, एक्सरसाइज 10.3 डिलीटेड है, लेकिन 10.4 जो है उसमें टी टेस्ट है, जिसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग आती है। एक्चुअली हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस इज एन अजम्पशन जो हम लेके चलते हैं, एंड वी विल टेस्ट वेदर आवर अजम्पशन इज ट्रू और नॉट।
Okay, so based on this, we have two hypotheses. The first one is called null hypothesis, and the second one is called alternate hypothesis. Okay, so to check whether our assumption is true or not, we will do some statistical analysis for that. And these statistical analysis is called Z test or T test, or so many other type of tests are there. Okay, so let's discuss a little bit theory about this. So just open page number 590 in your book, page number 590, and underline the things which I am telling you right now. So first, what is written? Uh, Okay, so the second paragraph of hypothesis testing. In hypothesis testing, we begin by making a tentative assumption about the population parameter called null hypothesis. So इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना और आप इसके अकॉर्डिंग नोट्स बना लेना. So इसमें क्या लिखा हुआ है? इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? हमारा जो अजम्पशन होता है वो अजम्पशन किस पे होता है? पॉपुलेशन पैरामीटर पे बेस्ड होता है. पॉपुलेशन पैरामीटर क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक मतलब कि मीन या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन. यूजुअली हम मीन पे ही करते हैं. तो हमारा जो पूरा का पूरा अजम्पशन होता है वो पॉपुलेशन की मीन पे होता है बेस्ड. क्लियर ये चीज? तो ये हो गया. अब इसके बाद क्या लिखा है? एंड इट इज डिनोटेड बाय एच नॉट. सो नल हाइपोथेसिस इज डिनोटेड बाय एच नॉट. ये पॉइंट ध्यान में रखना. ठीक है? When we define an another hypothesis called alternate hypothesis and it is denoted by HA. So ये complete paragraph underline कर लेना. ये आपको note down करना पड़ेगा अपनी notebook में. which is opposite of what is stated in null hypothesis. ये बता रहा है. Clear ये चीज? For example, जैसे कि अगर मैंने एक पॉपुलेशन का एनालिसिस किया, मैंने ये देखा कि एक पर्टिकुलर सिटी में वहां की जो पॉपुलेशन है उसकी एवरेज मंथली इनकम जो है वो कितनी है? 5,000 है. ठीक है, तो मैंने उनकी एवरेज मंथली इनकम मतलब मैंने पॉपुलेशन की मीन निकाला या अज्यूम किया, और पॉपुलेशन की मीन कितनी है? मैंने अज्यूम किया कि ₹5,000. ये उस पॉपुलेशन की, उस सिटी की मीन सैलरी है, मीन इनकम है. क्लियर ये चीज? तो ये जो स्टेटमेंट है मेरा, ये मेरा नल हाइपोथेसिस है, एच नॉट. क्लियर? क्योंकि मैंने अज्यूम किया, मैंने एक अजम्पशन रखा कि एक पर्टिकुलर सिटी की जो इनकम है मंथली वो इतनी है. क्लियर ये चीज? तो ये मेरा अजम्पशन है, ये मेरा हाइपोथेसिस है, और इस हाइपोथेसिस को हम बोलेंगे नल हाइपोथेसिस. अब इसका ऑल्टरनेट क्या होगा? इसका जस्ट अपोजिट स्टेटमेंट क्या होगा? उस सिटी की जो एवरेज सैलरी है वो 5,000 नहीं है. यही होगा उसका अल्टरनेट या अपोजिट स्टेटमेंट. तो उसका मतलब म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 5,000. ये अल्टरनेट स्टेटमेंट हो गया. क्लियर हुआ ये चीज? तो इसको हम बोलेंगे अल्टरनेट हाइपोथेसिस, और इसको H1 से रिप्रेजेंट करेंगे. क्या ये कॉम्प्लीमेंट जो बोल रहे हो ना, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, हाँ बिल्कुल उसी तरह Sir, का. please explain the second one again, this alternative. Okay, look, what I have assumed initially, that average salary of a person in a particular city is ₹5,000. So this is my initial assumption. Okay, so this assumption is my null hypothesis, and I will represent it by H naught. Okay, now what will be the alternate statement for this? That the mean salary of the person from that city is not 5,000. This is what the alternate statement. So the mean salary means mu. Mean we represent the population mean by mu. So mu is not equals to 5,000. This is our alternate hypothesis. Clear, Chevy? Yes, sir. We will consider some more examples based on this, and we will discuss other type of hypothesis also. Okay, so this was the most simplest hypothesis. देखो usually hypothesis marketing में use होता है, research पे use होता है. तो hypothesis क्या होता है? अगर कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है,
तो पहले ना एक पर्टिकुलर सिटी पे उसको वो लॉन्च करना चाहिए कि नहीं, या फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी ऑडी का शोरूम अगर इस पर्टिकुलर सिटी पे ओपन कर रहे हैं, तो पहले वो चेक करेगा ना कि यहाँ की पॉपुलेशन वैसी है कि नहीं कि ऑडी परचेस कर पाए, क्योंकि वो कॉस्टली कार है। तो वो क्या करेगी, अपने मार्केटिंग एनालिसिस करेगी, वो देखेगी कि यहाँ कितने मिलियनियर्स हैं, कितने इनकम वाले लोग हैं, सो दैट उस बेसिस पे उनके एनालिसिस के अकॉर्डिंग वो देखेगी कि अगर शोरूम ओपन करते तो उनको प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। तो पहले उनका एक अजम्पशन होगा कि मीन सैलरी कुछ इतनी होनी चाहिए, तो ये उनका नल हाइपोथेसिस है। अगर वैसा नहीं है तो क्या ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा। क्लियर? ओके। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ जो आपने किया, सेकंड पैराग्राफ वो क्लियर हो गया ना। उसके बाद क्या लिखा हुआ है देखो, नेक्स्ट हेडिंग में लिखा है डेवलपिंग नल एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो बेस्ड ऑन सिचुएशन हम कैसे इन हाइपोथेसिस को डेवलप करेंगे ये लिखा है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है टेस्टिंग रिसर्च हाइपोथेसिस, सेकंड है टेस्टिंग ए वैलिडिटी ऑफ क्लेम, और थर्ड है टेस्टिंग इन डिसीजन मेकिंग। ये तीन टाइप आपको दिख रहे हैं हाइपोथेसिस डेवलपमेंट के, तीन टाइप है, दिखा गया। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 ऐसा लिखा है। तो तीनों पॉइंट्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे फर्स्ट क्या लिखा है, टेस्टिंग रिसर्च हाइपोथेसिस। तो इसको एग्जांपल के थ्रू समझना, जैसा बुक में दिया है। सपोज ए पर्टिकुलर मोटर बाइक हैज एन एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ 40 किलोमीटर पर लीटर। ठीक है, तो एक बाइक की इतनी एवरेज स्पीड है। Research and Development Department of company developed a new fuel injection system to increase the average fuel efficiency. Here, research hypothesis is that new fuel injection system will have an average fuel efficiency exceeding 40 kilometer per liter as a general guideline. ओके, तो क्या हुआ, एक R&D टीम ने, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम ने एक अपना एनालिसिस किया कि तो जो एक पर्टिकुलर बाइक है उसकी एवरेज जो फ्यूल इफिशियंसी है वो 40 किलोमीटर पर लीटर है। तो उसने एक ऐसा सिस्टम बनाया, एक ऐसा फ्यूल बनाया जिसको अगर उसमें डाला जाए, मिक्स किया जाए, तो उसकी इफिशियंसी 40 किलोमीटर पर लीटर से बढ़ जाएगी। क्लियर? तो उसका नल हाइपोथेसिस क्या था कि जो मोटर बाइक है उसकी फ्यूल इफिशियंसी 40 किलोमीटर पर लीटर है या उससे कम होगी, ये है, और उससे उसको बढ़ाना है। क्लियर ये चीज? तो यहां पर उसका इनिशियल अजम्पशन जो उसने लेके चला था, एच नॉट या नल हाइपोथेसिस, उसने क्या लेके रखा था कि जो म्यू है, म्यू मतलब मीन, मीन फ्यूल इफिशियंसी जो है वो 40 किलोमीटर पर लीटर या उससे कम है। ये हो गया उसका नल हाइपोथेसिस, उसने ये लेके चला था। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस एच ए क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट, कि जो जो म्यू है या जो मीन फ्यूल इफिशियंसी है वो ग्रेटर देन क्या होगी, 40 किलोमीटर पर लीटर। क्लियर? तो इस तरह से प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग ये चीजें फ्रेम आउट हो जाएगी। ठीक है, शैल वी क्लियर? Yes, sir. Okay. Now look at the second type, that is testing the validity of claim. So इसके लिए एक और एग्जांपल है, क्या लिखा है देखो। Suppose a manufacturer of soft drinks claims that 2-liter soft drink bottle has an average at least 150 ग्राम ऑफ शुगर। तो 2 लीटर की जो बॉटल है उसमें एटलीस्ट 150 ग्राम ऑफ शुगर्स होते, ये उसका अजम्पशन है। ठीक है, अब एटलीस्ट 150 ग्राम्स मींस 150 ग्राम्स और मोर देन दैट, यही मतलब हुआ, कम से कम 150 एटलीस्ट का मतलब। ओके, अ सैंपल ऑफ 2 लीटर बॉटल इज सेलेक्टेड एंड the content will be measured to test the manufacturer's claim. तो एक सैंपल लिया गया 2 लीटर बॉटल का और उसमें टेस्ट किया गया कि मैन्युफैक्चरर ने जो क्लेम किया है कि 150 ग्राम या उससे ज्यादा होगा, उसको टेस्ट किया गया क्या ऐसा है या नहीं। Using this approach for soft drink example, we should state that null and hypothesis as follows. तो उसके बेसिस पे null और alternate hypothesis formulate हुआ। तो यहाँ पर जो हमारा null hypothesis जो हम ले रहे थे वो क्या ले रहे थे कि जो mean sugar content है वो एटलीस्ट 150 ग्राम्स है। इट मींस म्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 150 ग्राम्स। क्लियर हुआ ये चीज? तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा, म्यू इज लेस देन 150 ग्राम, यही हुआ। क्लियर हुआ ये चीज? ओके, नाउ लेट्स टेक द थर्ड केस, दैट इज टेस्टिंग इन डिसीजन मेकिंग।
सो टेस्टिंग इन डिसीजन मेकिंग का भी एग्जांपल हम यहीं से लेते हैं. This type of situation occurs when decision maker must choose between two courses of action, one associated with null hypothesis, another associated with alternate hypothesis. For example, on the basis of sample of parts for shipment just received, a quantity control inspector must decide whether to accept the shipment or to return the shipment to the supplier. It does not meet the specification. ये इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल दिया है. फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कोई शूज मेकिंग वाली कंपनी कोई शू बना रही है, ठीक है, और अगर उसको एक पर्टिकुलर साइज का शूज बनाना है, फॉर एग्जाम्पल 8 नंबर का जो शूज उसको मैन्युफैक्चर करना है, तो जब वो मैन्युफैक्चर होगा तो उसकी जो साइज होनी चाहिए वो एग्जैक्टली कितनी होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए. मतलब म्यू की वैल्यू जो है वो कितनी होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए. ठीक है, अगर 8 से छोटा हो गया तो भी वो रिजेक्ट हो जाएगा, 8 से बड़ा हो गया तो भी वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा. सो म्यू इज इक्वल्स टू 8 हमारा क्या हो जाएगा, नल हाइपोथेसिस, और ऑल्टरनेट क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इक्वल्स टू 8 हो जाएगा. क्लियर ये चीज. तो एच ए क्या हो जाएगा ये. तो इसमें दोनों तीनों सिचुएशन समझना. फर्स्ट जो सिचुएशन थी उसमें क्या लिया था हमने, म्यू लेस देन दिस ये था, और म्यू ग्रेटर देन वाला जो था ये था. ये आर&डी का केस था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. ये वाला केस जो था इसमें म्यू ग्रेटर देन सम वैल्यू था और लेस देन ये था. समझ में आ रहा है. और इस वाले केस में क्या, म्यू इज इक्वल्स टू हमारा नल हाइपोथेसिस था और नॉट इक्वल्स टू जो था वो क्या था, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस था. क्लियर हुआ. तो बेस्ड ऑन दिस उसने एक समरी क्रिएट की है. अगर आप देखोगे थर्ड पॉइंट के नीचे एक समरी आपको दिख रही है, हाइपोथेसिस टेस्ट फॉर पॉपुलेशन मीन, दिख रहा है ये. जो फर्स्ट वाला जो केस है, म्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू म्यू नॉट, मतलब वो ये वाला केस बता रहा है, म्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू म्यू नॉट. फिर सेकंड वाला जो कॉलम है उसमें क्या, म्यू लेस देन और इक्वल्स टू म्यू नॉट. और थर्ड वाला जो कॉलम है वो क्या, म्यू इज इक्वल्स टू म्यू नॉट. क्या ये समझ में आ रहा है. मतलब हमने मीन पॉपुलेशन को ग्रेटर लिया, स्मॉलर लिया और इक्वल टू लिया म्यू नॉट के. ठीक है. अब म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट है हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन मीन. मतलब जो भी हमने हाइपोथेसिस किया है कि मीन वैल्यू ये होगी. जैसे यहाँ पर हमने मीन वैल्यू 5000 सैलरी ली थी, यहाँ पर हमने मीन वैल्यू 40 क्या था, 40 किलोमीटर पर लीटर लिया था. इस तरह से वो मीन अलग अलग सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा जो हमने अज्यूम किया. अब इसमें एक और चीज जो लिखी है उसके नीचे बोल्ड लेटर्स में देखना, द फर्स्ट टू फॉर्म्स आर कॉल्ड वन टेल्ड टेस्ट एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड टू टेल्ड टेस्ट. मतलब ये वाले जो दो सिचुएशंस होते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू या लेस देन और इक्वल्स टू, म्यू लेस देन और इक्वल्स टू और म्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, it is called one tailed test. Okay, and this one is called two tailed test. Two tailed test, clear हुआ ये चीज. okay. इसके बाद टाइप 1 टाइप 2 एरर्स हैं. उसको आपको इस टेबल से मैं समझा देता हूं. पिछले नेक्स्ट पेज में आपको जस्ट एक टेबल दिख जाएगी, पेज नंबर 592 पे. और इस टेबल पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो दो कॉलम्स है, एच नॉट ट्रू, एच ए ट्रू. एच नॉट मतलब नल हाइपोथेसिस ट्रू, एच ए मतलब ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू. और उसके रोज अगर देखोगे तो एक्सेप्ट एच नॉट, रिजेक्ट एच नॉट, ये दिख रहा है. अब इसमें अगर एच नॉट ट्रू है और एच नॉट एक्सेप्ट हो रहा है, मतलब नल हाइपोथेसिस ट्रू है, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है, तो करेक्ट कंक्लूजन, हमारा कंक्लूजन सही था. मतलब उसको एक एग्जांपल से अगर बताएं कि मान लो हमने हमने क्या किया, हमने ये नल हाइपोथेसिस बनाया कि जो बाइक की, मोटर बाइक की जो मीन जो इफिशियंसी थी, फुल फ्यूल इफिशियंसी, वो 40 किलोमीटर पर लीटर या उससे कम थी. ठीक है. अब यहाँ पर ये हमारा नल हाइपोथेसिस है. हम क्या करेंगे, इसकी टेस्टिंग करेंगे. अभी टेस्टिंग वाला पार्ट हमने पढ़ा नहीं है, ये ट्रू है या नहीं है. हम टेस्टिंग करेंगे और टेस्टिंग करने पे ये ट्रू निकला तो हमारा अजम्पशन और हमारी टेस्टिंग दोनों सही हुई. तो हम क्या करेंगे, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे. ठीक है. एक्सेप्ट करेंगे तो वो क्या है, करेक्ट अजम्पशन हो गया. क्लियर हुआ ये चीज. और अगर हमारा अजम्पशन है कि ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस करेक्ट है, ठीक है, और हमने उसको एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया, इसको रिजेक्ट किया मतलब ऑब्वियसली इसको क्या किया, एक्सेप्ट किया, तो मतलब क्या हो जाएगा, वो भी हमारा अजम्पशन करेक्ट है या करेक्ट कंक्लूजन है. क्लियर. लेकिन अगर हमने क्या किया, एच नॉट को मतलब एच ए ट्रू हो गया,
और हमने एच नॉट को एक्सेप्ट कर लिया। जैसे कि इसी एग्जांपल पे लेते हैं, अगर उस आर&डी टीम ने क्या किया, नल हाइपोथेसिस बनाया कि एच नॉट जो है, मतलब कि जो मीन फ्यूल इफिशियंसी है 40 किलोमीटर पर लीटर या उससे कम है, ये हमारा अजम्पशन था, ठीक है। लेकिन जब हमने टेस्टिंग की तो हमको पता चला नहीं, ऐसा नहीं है, जो फ्यूल इफिशियंसी है 40 यूनिट पर लीटर से ज्यादा है। लेकिन हमने फिर भी इसी इसी अजम्पशन को सही मानते हुए आगे फॉलो कर दिया, तो हमारा क्या है, वो अजम्पशन गलत हो गया। हमने अज्यूम ही गलत किया था और हमने गलत अज्यूम करके आगे फॉलो कर दिया, प्रोसीड कर दिया। तो इस तरह के केसेस में इस एरर को बोलते हैं टाइप 2 एरर। दिख रहा है वो फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम, ठीक है। उसी तरीके से बाकी जो केस होगा वो क्या होगा, टाइप 1 एरर होगा। हालांकि इसका उतना ज्यादा कोई सिग्निफिकेंस नहीं, ज्यादा यूज नहीं होता है, तो इसलिए ये वाला पार्ट कॉलम अगर समझ में आया तो ठीक, नहीं तो फिर ध्यान दे देना, उसको थ्योरी में 1 मार्क के लिए आ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। इसमें जेड स्टैटिस्टिक है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये वाला पार्ट आपको नहीं करना है, इसके नीचे वाला पार्ट, ठीक है। इस पे बेस्ड जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 10.3, वो भी आपको नहीं करनी है। फिर उसके नेक्स्ट जो आपको करना है, टी टेस्ट करना है, जो कि पेज नंबर 599 पे, ठीक है। शेवी, आर यू देयर? Yes, sir. ओके, सो नेक्स्ट इज टी टेस्ट। हाँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो द नेक्स्ट इज टी टेस्ट। तो ओपन करना बुक में टी टेस्ट, और उसमें जो चीजें मैं बता रहा हूँ अंडरलाइन कर लेना, वो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सो सबसे फर्स्ट लाइन क्या लिखा है, अ टी टेस्ट इज a statistical test that is used to compare the means of two groups which may be related in certain features, ठीक है। तो टी टेस्ट एक्चुअल में क्या है, एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट है जो कि कंपेयर करता है किसको, दो ग्रुप्स के मीन को कंपेयर करता है, विच में बी रिलेटेड इन सर्टेन फीचर, जो किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से क्या होंगे, रिलेटेड होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मैं दो तरह के लोगों की हाइट को कंपेयर करूं, मीन हाइट को, एक इंडियन ओरिजिन है, दूसरे अफ्रीकन ओरिजिन है, ठीक है। दोनों के मैं 10-10 पर्सन को लूं, मेल को लूं सपोज, ठीक है, और वहां के 10 मेल्स को लूं, और जब हाइट का एवरेज निकालूंगा, तो हो सकता है इंडियंस की जो एवरेज हाइट होगी वो 5 फीट 6 इंचेस के आसपास होगी, लेकिन अफ्रीकन की जो मीन हाइट होगी वो कुछ और होगी, 6 फीट होगी सपोज एवरेज हाइट। तो ये दोनों के मीन को वो क्या करेगा, कंपेयर करेगा दोनों ग्रुप के, एक टेस्ट अप्लाई करके। क्लियर हुआ ये चीज, ये दोनों में कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या फिर नहीं है, ये चीज एक्चुअल में टेस्ट होती है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई, टी टेस्ट क्या होता है। अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है, देर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ टी टेस्ट, 3 टाइप के टेस्ट है। फर्स्ट है 1 सैंपल टी टेस्ट, सेकेंड है 2 सैंपल टी टेस्ट, थर्ड है पेयर्ड टी टेस्ट। तो पेयर्ड टी टेस्ट आपके सिलेबस में नहीं है, 1 सैंपल और 2 सैंपल टी टेस्ट है, ठीक है। 1 सैंपल टी टेस्ट क्या होता है, उसमें लिखा है इफ देर इज 1 ग्रुप बीइंग कंपेयर्ड अगेंस्ट ए स्टैंडर्ड वैल्यू, ठीक है, तो इसको बोलते हैं 1 सैंपल टी टेस्ट। जैसे कि मैंने अगर मान लो हमने ये देख लिया कि इंडिया की जो ओवरऑल सारे मेल की जो एवरेज हाइट है वो है 5 फीट 6 इंचेस, क्लियर। और अगर मैंने पूरे पॉपुलेशन को नहीं, मैंने सिर्फ 10 लोगों को लिया, ये पूरे पॉपुलेशन की मीन हाइट है, मतलब ये म्यू है एक्चुअल में, समझ में आया। लेकिन मैंने सिर्फ 10 लोगों के लिया और उसकी मीन हाइट निकाली, तो वो क्या है, मेरे सैंपल का मीन है, तो वो क्या होगा, एक्स बार होगा। और एक्स बार की वैल्यू सपोज 5 फीट और ये आ गई 4 इंचेस आ गई, क्लियर। तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को, स्टैंडर्ड वैल्यू और हमारे सैंपल की जो मीन वैल्यू, दोनों को कंपेयर करेगा ये टेस्ट। हाँ, स्टैंडर्ड एरर बोलते हैं, लेकिन दोनों का कंपैरिजन करना जो है ना, डिफरेंस नहीं, कंपैरिजन करना, ये टेस्ट होता है। क्लियर ये चीज, ओके। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, 2 सैंपल टी टेस्ट। तो 2 सैंपल टी टेस्ट में क्या बोल रहा है, इफ द ग्रुप कम फ्रॉम 2 डिफरेंट पॉपुलेशन परफॉर्म 2 सैंपल टी टेस्ट, मतलब वही 2 डिफरेंट ग्रुप से ले रहे हैं, एक इंडियन ओरिजिन वाले, एक अफ्रीकन ओरिजिन वाले, और उसके बाद मीन को कंपेयर किया जा रहा है, तो ये 2 सैंपल टी टेस्ट हो जाता है, क्लियर। इसको इंडिपेंडेंट टी टेस्ट या स्टूडेंट टी टेस्ट भी बोलते हैं, तो ये लिखा हुआ है, ठीक है।
इसके बाद फिर पेयर्ड टी टेस्ट, तो वो आपके में नहीं है, उस चीज को ध्यान मत दो ज्यादा। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, टी डिस्ट्रीब्यूशन, दिख रहा है टी डिस्ट्रीब्यूशन। टी डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टाइप की ही चीज होती है, ठीक है। तो आपको वो ग्राफ में दिख रहा होगा, जेड या टी एक्स एक्सिस पे लिखा हुआ है ग्राफ में, और वाई एक्सिस में सबसे ऊपर वाला जो कर्व है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। फिर उसके बाद टी डिस्ट्रीब्यूशन है फॉर डिफरेंट डिग्री, जैसे 20 डिग्री फ्रीडम, 10 डिग्री फ्रीडम, ये आपको दिख रहा हो। ये मैं बताऊंगा अभी आने वाला डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। एक्चुअली डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर इस क्लासरूम में 30 चेयर्स हैं, ठीक है, और 30 स्टूडेंट्स हैं जो आने वाले हैं, तो फर्स्ट स्टूडेंट जब एंटर करेगा तो उसके पास 30 चॉइसेस है, सेकंड के पास 29 चॉइसेस, इस तरह से सबके पास डिफरेंट नंबर ऑफ चॉइसेस है, ठीक है। लेकिन जब 29 स्टूडेंट्स इस क्लास में बैठ जाएंगे, तो जो आखिरी स्टूडेंट आएगा तो एक ही चेयर बची रहेगी वहां पर, तो उसके पास कोई भी चॉइसेस नहीं है। तो कितने लोगों के पास फ्रीडम है, 29 लोगों के पास फ्रीडम है सिलेक्शन का, समझ में आ रहा है। तो एक पर्सन के पास नहीं है। तो हमेशा डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकाला जाता है, n-1। जैसे इस केस में n की वैल्यू 30 थी, तो 30-1 मतलब 29 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। क्लियर शैबी, ये पॉइंट क्लियर है, डिग्री ऑफ फ्रीडम? Yes, sir, understood. ओके, now let's understand what is how we calculate one sample t test। तो नीचे आपको एक टेबल दिख रही है, वन सैंपल टी टेस्ट करके हेडिंग डाला है और एक फॉर्मूला लिखा हुआ है। ये फॉर्मूला अभी हम यूज करेंगे आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स में, तो उसको समझ लेना, ठीक है। तो क्या लिखा है इसमें, in testing the null hypothesis that the population mean is equals to the hypothesized mean value mu naught, we test statistic। तो क्या बोल रहा है, अगर देखो So इन where it is written? इन पेज नंबर 600, वन सैंपल टी टेस्ट, अंडर दैट वन सैंपल टी टेस्ट। Yeah, yes, sir, got it. ओके, सो इन टेस्टिंग नल हाइपोथेसिस, मतलब हम नल हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे हैं, हमने जो जो भी अज्यूम किया था स्टार्टिंग में, that the population mean is equals to the hypothesized value mu naught। मतलब जैसे कि मैं इसी एग्जांपल को लेते हैं, इसको मैं mu naught ले रहा हूं। mu naught मतलब hypothesized mean, मतलब मान लो मैंने ये अज्यूम किया कि इंडिया की जो एवरेज हाइट है वो इतनी है, ठीक है। और उसके बाद इसको किससे कंपेयर करेंगे, पॉपुलेशन मीन से। जो पॉपुलेशन की मीन है वो इस मीन के बराबर है या नहीं, हम वो चेक करना चाहेंगे, ठीक है। तो वो चेक करने के लिए जो मेथड होता है, जो टेस्ट होता है, वही टी टेस्ट है। अब टी टेस्ट का फॉर्मूला क्या है उसको समझ लेना। फॉर्मूला आपको लिखा है टी इज इक्वल्स टू एक्स बार। एक्स बार क्या है, सैंपल मीन। एक्स बार है सैंपल मीन, एक्स बार क्या है, सैंपल मीन। क्लियर। म्यू जो है ना, पॉपुलेशन मीन बोलना गलत होगा, ये है हाइपोथेसाइज्ड पॉपुलेशन मीन। हाइपोथेसाइज्ड मतलब अज्यूम्ड पॉपुलेशन मीन, हमने जो अज्यूम किया है, ठीक है। हाइपोथेसाइज्ड पॉपुलेशन मीन, ठीक है। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, एस। एस मतलब है सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, डिवाइडेड बाय रूट एन, डिवाइडेड बाय रूट एन। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, एस सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, और एन तो क्लियर है, एन क्या होता है, सैंपल साइज। हाँ वो जाएगा, एक्चुअली फॉर्मूला ऐसा लिखा हुआ है, रूट एन रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला क्लियर। अब एक काम करते हैं, इस फॉर्मूले पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि किस तरह से इनको अप्लाई करना है। तो एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं सबसे पहले इस पे बेस्ड। अच्छा, इसमें और वन टेल्ड और टू टेल्ड है, तो पहले हम वन टेल्ड को समझ लेते हैं कि कैसे वो अप्लाई होगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज उसके नीचे लिखी हुई, पी वैल्यू अप्रोच। तो ये दिख रहा है पी वैल्यू। पी वैल्यू एक्चुअली प्रोबेबिलिटी वैल्यू होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। तो अगर आपको याद होगा, पिछले बार मैंने आपको इस तरह का ग्राफ बताया था, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बेल कर्व, करेक्ट। इसमें हम इस तरह से एक रेंज लेते हैं, एक्सेप्टेंस रेंज होता था, और ये जो हमारा रेंज होता था इसको क्या बोलते थे, रिजेक्शन रेंज,
ठीक है, तो रिजेक्शन रेंज जो है, मतलब कोई भी सैंपल अगर हम ले रहे हैं तो वो इसके इस पार जाएगा, इस वाले जो वैल्यू होती है इसकी प्रोबेबिलिटी को जो निकाला जाता है उसको बोलते हैं पी वैल्यू बोलते हैं। क्लियर हुआ ये चीज? तो पी वैल्यू एक्चुअली बताता है प्रोबेबिलिटी कि ये जो है इसके आउटसाइड फॉल करेगा। तो पी वैल्यू जितनी कम होगी उतना हमारा अजम्पशन परफेक्ट होगा। क्लियर ये चीज? ओके ओके, सो एक न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं इसी पे बेस्ड, टी टेस्ट पे बेस्ड एग्जांपल से ही देखते हैं सो दैट आपको समझने में इजी हो। और मैं एग्जांपल 2 लेता हूं क्योंकि उसमें सारे पॉइंट्स कवर अप हो जा रहे हैं जो कि रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो आप अपनी बुक पे पेज नंबर 602 ओपन करना, पेज नंबर 602, और इसमें आपको दिखेगा एग्जांपल नंबर 2 दिख रहा है। इसमें देखो क्या लिखा है, कंसीडर द फॉलोइंग हाइपोथेसिस टेस्ट। तो हाइपोथेसिस टेस्ट जो है उसमें सबसे पहले एच नॉट लिखा है। एच नॉट क्या होता है? नल हाइपोथेसिस। और नल हाइपोथेसिस क्या है? म्यू इज लेस देन और इक्वल्स टू 12। ठीक है, मतलब हमारा नल हाइपोथेसिस है कि जो मीन वैल्यू है वो 12 या 12 से छोटी है। तो इसका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस एच ए वो भी आपको दिया हुआ है, वो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, मतलब म्यू ग्रेटर देन 12 हो जाएगा। क्लियर? ऑल्टरनेट नहीं दिया तो हम अपने आप समझ जाएंगे कि क्या होगा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। अब इसके बाद क्या लिखा है? ए सैंपल ऑफ 25 प्रोवाइडेड। तो सैंपल ऑफ 25 मतलब आपको n की वैल्यू दी हुई, n इज इक्वल्स टू कितना है? 25। क्लियर ये चीज? अब उसके बाद क्या लिखा है? सैंपल मीन x बार इज इक्वल्स टू x बार इज इक्वल्स टू 14। अगर x बार नहीं लिखा है, सैंपल मीन वर्ड लिखा है, तब भी आप समझ जाना। ठीक है, एंड सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन s भी गिवन है। s की वैल्यू कितनी है? 4.32 गिवन है। क्लियर यहां तक? अब आपको क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक। आपको टेस्ट स्टैटिस्टिक मतलब टी की वैल्यू निकालनी है यहां पर। क्वेश्चन क्लियर? तो देखो किस तरीके से निकालेंगे टी की वैल्यू। तो फॉर्मूला क्या था? टी इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं टी इज इक्वल्स टू, सबसे पहले क्या है? एक्स बार। तो एक्स बार की वैल्यू कितनी हो गई? 14 माइनस म्यू नॉट। तो म्यू नॉट मतलब क्या? म्यू नॉट ये है आपका म्यू नॉट, समझ रहे हो ना? ये आपका म्यू नॉट होता है जो भी हमने हाइपोथेसाइज किया है इसकी वैल्यू को। तो ये म्यू नॉट, तो म्यू नॉट की वैल्यू हो गई 12 डिवाइडेड बाय एस। एस की वैल्यू कितनी है? 4.32। 4.32 डिवाइडेड बाय रूट एन, मतलब क्या हो गया? रूट 25, जिसकी वैल्यू क्या आएगी? 5। तो ये हो गया 2, ये 5 रेसिप्रोकल होके ऊपर जाएगा, डिवाइडेड बाय 4.32। तो 5 इंटू 2 मतलब ये हो जाएगा 10। 10 डिवाइडेड बाय 4.32, 4.32, तो ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 2.31। 2.31 ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। चेक करो उसको। क्लियर ये चीज? शैवी क्लियर फर्स्ट पार्ट? Yes, sir. हाँ, आगे जरूरत पड़ेगी मैं बताऊंगा। ठीक है, ओके। नाउ द सेकेंड पार्ट, यूज टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल टू कंप्यूट द रेंज ऑफ पी वैल्यू। तो आपको पी वैल्यू की रेंज निकालनी है। ठीक है, पी वैल्यू की रेंज निकालनी है, उसके लिए आपको टेबल यूज करना पड़ेगा। अब ये टेबल कैसे यूज करना है वो समझना। ठीक है, सेकेंड पार्ट के लिए ध्यान देना। सबसे पहले हमारी जो ये वैल्यू आई है टी की वैल्यू, टी Sir, after this, they have subtracted from 1 also to show the degree of freedom. yes yes but in second part, yes, in second part it is asked to, okay, degree of freedom na, हाँ, degree of freedom is n minus 1 and here n is equals to 25, so it will be 24. Yes, correct. Any doubt from this, Chevy? No, sir. So, but like, what is the use of this? I will explain after this question. Okay, what is the use of this? Because this degree of freedom is used to calculate the values which is given in table p value. Okay, so just check the second part. Use t distribution table to compute the range of p. ओके तो यहां पर चेक करना, यहां पर हमारी जो p वैल्यू आई है, हमको p वैल्यू एक्चुअली निकालनी है। अभी ये हमारी किसकी वैल्यू आई? t की वैल्यू आई। ये किसकी वैल्यू आई? t की वैल्यू आई। ठीक है, अब इसके बाद आप अपनी बुक में ओपन करना लास्ट पेज,
एकदम लास्ट पेज ओपन करना, ठीक है। टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो आपको दिख रही है, आई थिंक पेज नंबर 751, यस, पेज नंबर 751 ओपन किया। 751 देखो ना, 751, पेज नंबर 751। अभी आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आई थी इसमें, चेक करो। 24 आई थी डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब इसमें पेज नंबर 750 में देखना, आपको जो फर्स्ट कॉलम दिख रहा है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम का है। दिख रहा है शेवी, दिख रहा है? आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. Page number 750, the first column shows the degree of freedom, in which check the values. Okay, so values are 0.5857, 1.318, 1.711, and so on. So here RPT value is 2.31. Okay, हाँ 5 मिनट में. So the t value we got is 2.31, correct? Now this value 2.31 lies between 2.064 and 2.492, correct? I think the fourth and fifth column, just check. ये आपको दिख रहा है ना, इस तरह से कॉलम दिख रहा होगा जिसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम में ये 24 होगा, फिर उसके बाद ये फर्स्ट वाला कॉलम, फिर सेकंड वाला, फिर थर्ड वाला, फिर उसके बाद ये वाली जो वैल्यू होगी ये कितनी लिखी हुई है, 2.064, और उसके बाद वाली वैल्यू कितनी है, 2.492, करेक्ट? ओके शेवी, ये मिला क्या? Yes, sir. Okay, now in the first row, the values which is written in bold are the p values. So for this one, what is the value in the bold letter which is written in the first row? Check. It is 0.025, correct? And for this one it is 0.01, correct? So here the p values lies between these two intervals, correct? So the answer will be p value is greater than 0.025, 0.025, सॉरी 0.0025 है क्या, चेक करो तो एक बार। नहीं सही है, 0.025 है। ये वाला पहले आएगा ना, 0.01 छोटा होता है ना, ग्रेटर देन 0.01 एंड इट इज लेस देन 0.025, करेक्ट? तो अगर आपको p वैल्यू डिटरमाइन करने बोल रहा है तो p वैल्यू डिटरमाइन करने का मेथड क्या है? सबसे पहले आप दो चीजें निकालोगे, पहला तो t निकालोगे, t स्टैटिस्टिक, फिर आप क्या निकालोगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालोगे, फिर आप टी टेबल पे जाओगे, टी टेबल में डिग्री ऑफ फ्रीडम चेक करोगे, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, ठीक है? फिर टी वैल्यू देखोगे कि वो कौन सा इंटरवल के बीच में आ रहा है, जिस इंटरवल के बीच में आ रहा है उनकी पी वैल्यूज को नोट डाउन कर लोगे, एंड योर पी वैल्यू विल बी इन बिटवीन दिस टू इंटरवल। क्लियर हुआ ये स्टेप? शेवी, इज इट क्लियर? Yes, sir. Understood. हाँ, ये टेबल दी होगी या तो इसकी वैल्यू दी होगी आपको। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, third part. So the third part says that at alpha is equal to 0.05, what is your conclusion? So alpha की वैल्यू दी हुई, कंक्लूजन निकालना है। अब देखो इसके लिए ना ध्यान देना, बस 2 मिनट ना, इसके लिए आप पेज नंबर 602 पे हो, पेज नंबर 602, इस पे देखना वो एक टेबल बनी हुई है, दिख रही है उसमें सबसे टॉप में टेबल, इसमें लोअर टेल टेस्ट, अपर टेल टेस्ट, टू टेल टेस्ट, ये 3 कॉलम है। तो यहां पर अभी जो हमारी सिचुएशन है, जो हम एग्जांपल 2 कर रहे हैं, ये कौन सा है, लोअर टेल या अपर टेल? हाँ, हमने ये नहीं पढ़ा है, ये आगे आता है इसमें, लेकिन लोअर टेल अपर टेल आप यहां से समझ जाओगे। देखो कौन सा है लोअर टेल, ये एक्चुअली इसमें मैंने उसको मार्किंग नहीं की थी, नाम नहीं दिया था, लेकिन उसमें ये चीजें मेंशन्ड है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के 3 पार्ट मैंने बताए थे, ठीक है? 3 पार्ट में एक था लेस देन
दूसरा ग्रेटर देन, और थर्ड वाला क्या था, इक्वल टू वाला था। तो जो ग्रेटर देन वाला होता है वो लोअर टेल टेस्ट होता है, देखो ऊपर दिख रहा है वो एच नॉट। जो लेस देन वाला होता है वो अपर टेल होता है, और जो इक्वल्स टू वाला होता है वो टू टेल टेस्ट होता है। ठीक है, तो मैंने वन टेल और टू टेल आपको बताया था। वन टेल के फर्दर दो टाइप्स होते हैं, लोअर टेल एंड अपर टेल, यहां पर वो बाइफरगेटेड है। क्लियर? अब इसमें जो हमने एग्जांपल टू लिया है ये कौन सा केस है, लोअर टेल या अपर टेल, चेक करो। upper tail hai, because we match with the condition, and here null hypothesis H naught says that mu is less than or equals to 12. So this match with this the given condition. Okay, so ये है अभी हमारे पास upper tail test, और यहाँ Sir, पर in exam, like this value will be given in the form of table or directly it will be given? about the p values, Yes, sir. the p values will be given in question in the form of either in the form of table, or they will directly provide the range of p values. Okay, both the situations are possible. Yes, sir. So like it will be like a hint to check our answer that if we are lying in between the values. Yes, yes, we can check our answer to test So with, like but if suppose we don't get the correct value and it is more than or very less than the given values, then what we have to do? Or for what? that is also a condition. For what? For p values? Yes, sir. No, the p values are fixed. It is mentioned in table. We don't. We will not be. We will not have any wrong answer for that, because these values are fixed. 0.025, 0.01. You will not get any other range other than this. No, so like n minus 1, we got 24 here. So Yes. this value is satisfying the given equation for p value. But if suppose, like, how we'll come to know that where we have to put the greater sign or less than sign? This sign. This sign. Yes, sir. Okay. It is simple that look here we got two values of p. This one is 0.01, this one is 0.025. Now we will simply check which number is greater. Obviously 0.2025 is greater, so 0.025 will be here, 0.01 will be here, and p will be in between them. Correct? And so if we get the answer in the form of point, like n minus 1 here we got 24. If we get it in the form of point, No, we will never get this in decimal, because n is number of sample and it will always be a positive integer. N cannot be a negative number, or it will not be in decimal. Okay. yes, sir. Okay. So यहाँ तक clear p value calculation तक. Okay. Now the next table check करना, table page number 602 पे जो मैंने आपको table बताई थी. So here we are doing upper tail test, correct? So in case of upper tail test, check the third row, exactly the third row. Rejection rule p value approach. It is written. So what is the rejection rule? So it is written that reject H naught if p value is less than alpha. Now in question, the value of alpha is given to you. What is the value of alpha? In 0.05. And what is the p value we are getting here? So the p value we are getting here is 0.025. Look, the p value we are getting is in between in this interval. Now the value of alpha given is 0.05, correct? So the p value which we are getting is less than alpha. So p value we got is less than alpha, correct? Now what is written in that table? Check. If p value is less than alpha, then reject null hypothesis. So our answer will be H naught is rejected. Clear? This will be the answer. Shavi, is it clear? Yes, sir, understood. Okay. Now, in the last part, what is the question? What is the rejection rule using the critical value? What is your conclusion? Okay. So H naught is rejected. This is okay. This is fine. Now,
this T alpha, actually this T table should be explained. यहाँ तक रहने दो, एक काम करते हैं, इसके बाद वाला जो पोर्शन है ना मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि एक साथ जल्दबाजी में करूंगा ना तो फिर आगे फिर कंफ्यूजन हो जाएगा. यहाँ तक का प्रोसेस क्लियर? सो इन T test we have 3 different types of question. First, we have to calculate T statistic and degree of freedom. Second, we have to calculate P values using T table. And third, we have to reject or accept our null hypothesis, that is H naught. So based on this, you can try some questions from exercise 10.4. You can try to solve question number 1, question number 2, question number 3, and question number 4 also. You can try to solve these 4 questions from exercise. Okay? Okay, Chevy? Yes, sir. Okay, so we will continue in the next class after this. Okay? Thank you. Thank you, sir.